The beautiful thing is in ML coding is that you don't have to remember this, right? C जैसा याद रखना नहीं है. You just need to just Google it. That function available, I will use it. We use it. It's good. Because effort is not on memorizing the course or memorizing the library function. Effort is to solve the problem. ये एक basic difference है coding का, ML coding का. So remember, this is a linear regression is a class. I'm not getting into details of this. Linear regression is a class. Remember, जहाँ पर तुम लोग क्लास में जावा का प्रोग्राम किए हो सब लोग जावा. All of you have done, people have done. जावा नहीं है. अच्छा, ठीक है. For the time being, just have the idea. Linear regression is a class. I think a class है. जैसे कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट उसका मेथड को डॉट ऑपरेटर कॉल करता है, यहाँ पर ऐसे ही कॉल होगा. सेम फॉर्मूला. Right. So you'll be taking down this. Let me explain that. इसको थोड़ा मैं explain कर देता हूँ. Then you can think of doing this. What I'm doing actually, देखो यहाँ पे ध्यान देके देखो. I've gone for sklearn का data sets. इसका खुद का एक पैकेज है. एक मॉड्यूल है data sets करके. उसके अंदर रेडीमेड data sets अवेलेबल है. It's very easy to start with. कभी easy होता है. Otherwise, what you can do? The same data set is available in Kaggle. other जगह भी available है, तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो. उसको और एक बार देखेंगे. अभी में आपको वहां पर जाने के लिए आपको डाटा फ्रेम चाहिए, pandas, वो थोड़ा brief चाहिए, वो अभी तक हमने नहीं शेयर किए. So जो भी डाटा सेट्स के अंदर available डाटा सेट उसको मैं ले रहा हूँ. So now what's your additional job is you can browse डाटा सेट्स के अंदर और क्या क्या डाटा सेट available है. फिर गूगल कर देना. sklearn का डाटा सेट्स एंटर मार देना, वो दिखा देगा लंबा सा डाटा सेट सब अवेलेबल. राइट. सो आई एम यूजिंग diabetes data set actually. You can see data set dot load underscore diabetes, load underscore iris, load underscore mnis, ऐसा करके बहुत सारे डाटा सेट का पैकेज के अंदर अवेलेबल है. For my program I'm taking this one. Right. ना ये लोड हो गया. लोड होने के बाद इसमें अगर तुम्हें डाटा एक एट्रीब्यूट है जिसको अगर तुम कॉल करोगे इट विल रिटर्न बैक एक्स पार्ट ऑफ द डाटा सेट, वो खुद निकाल के दे देगा. अगर तुम डाउनलोड करके लेके आते सो यू हैव टू गो फॉर एक्सप्लिसिटली मार्किंग कहां से कौन सा कलम एक्स को जाएगा, कौन सा कलम वाई को जाएगा, देन उसको सेपरेट करना पड़ता है. But यहाँ पर since it's inbuilt package is available, just you access data attributes, get all the X part of it. Target attributes gives the Y part. You know, any supervised learning algorithm, you have a X, you have a Y. X can be one column, one feature, or it can be 10, 20, 30 features. यहाँ पर 10 feature. वो कैसे जानेंगे? After you do this, you can check these values. X dot set, X का type क्या होगा? These are normal functions. Check it. X dot set means वो दिखा रहेगा. This is 442, 10 means 442 rows, 10 features. आ जाएगा. Similarly, Y का set कितना होगा? It is one time इसका 442. This diabetes data set में Y के value है एक दिन में digits का progressions कितना होता है. They have some medical calculations. We are not bothered about that. कुछ calculations है एक दिन में कितना regression, कितना progressions होता है disease का. कुछ calculation internal है. Right. अगर browse करें तो मिलेगा. अभी हमें नहीं चाहिए. We need to understand what is regression actually. Right. Now this is once you go for DSCR, this is another attribute. Remember why I am calling these attributes. DB जो है is a data set मिला मुझे यहाँ पे. उस data set का different attribute set होता है. To access those कैसा सिर्फ DSCR save ये दो attributes ही नहीं, बहुत सारा है. सब बहुत सारा कैसे यूज करेंगे? Simple check it. The data set will load diabetes and load something. What it returns? वो जो return करेगा, if I'm not wrong, it's returning a dictionary. Check करना थोड़ा. Returning a dictionary.
I may be wrong, you can check it, right? आप DB का टाइप चेक कर लोगे, check the DB's type, you will find possibility dictionary. डॉट ऑपरेटर के साथ की को दोगे तो वो वैल्यूज ऑफ देता जाएगा, right? Now this is very important things. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, कोई भी मॉडल को आपको ट्रेनिंग डाटा देना पड़ता है, टेस्टिंग डाटा देना पड़ता है. So what is training data? Training data are those data which model trains itself for setting its different parameters. For setting its different parameters. What are the parameters here? Coefficients. तो check करेगा, right? And what are the test data? Test data क्या होता है जिसको मॉडल कभी नहीं देखता? टेस्ट डाटा और अनसीन डाटा, रिमेंबर. टेस्ट डाटा अनसीन बोले तो मॉडल को उसके साथ कोई लेना नहीं है, वो टेस्टिंग करने में आता है. अभी तुम उसको लेकर ट्रेन हो गया, वो मेरे ऊपर काम करके दिखाओ, बिकॉज आई एम अननोन टू यू. इसमें और एक कैटेगरी है, रिमेंबर, वैलिडेशन डाटा. ये तो तुम्हें जानना जरूरी है. एनीबॉडी कैन टेल डिफरेंस? में बोला था क्लास में वैलिडेशन डाटा, शायद नहीं बोला, नहीं बोला. यहां पर नहीं है वैलिडेशन. वैलिडेशन एंड टेस्टिंग में अंतर यह है, वैलिडेशन डाटा मॉडल का हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने में यूज होता है. तो मॉडल हैज सीन दोस डाटा. व्हाट इज हाइपर पैरामीटर? जिन लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, जो पैरामीटर्स खुद यूजर सेट करता है वो होता है हाइपर पैरामीटर. यहाँ पर ऐसा कुछ हाइपर पैरामीटर नहीं है, वो यू डोंट हैव दैट, राइट? सो हाइपर पैरामीटर those parameters which are used to, sorry, validation data are those data which are used to tune the hyper parameter. ट्यूनिंग मतलब मालूम है? कौन सा वैल्यू के लिए अच्छा एक्यूरेसी दे देगा, व्हाट इज द लर्निंग रेट, हाउ मेनी लेयर्स, कितना न्यूरॉन्स लूम है, 10, 15, 20, दिस आर ऑल हाइपर पैरामीटर. तो वैलिडेशन डाटा को मॉडल देखता है क्योंकि उसको लेकर उसको ट्यूनिंग करना पड़ता है. टेस्ट डाटा कंप्लीटली नॉट सेम. सो वैलिडेशन डाटा गोज विद ट्रेनिंग डाटा, रिमेंबर, इट गोज विद ट्रेनिंग डाटा. और टेस्ट डाटा पूरा अलग है. उसको स्प्लिट करने के लिए यू हैव ए फंक्शन, वेरी पॉपुलर फंक्शन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. अब एक्स का डाटा वाई का डाटा दोनों में स्प्लिट होगा, दोनों में स्प्लिट होगा ना. यहाँ पर टेस्ट साइज 0.3 मतलब 30% डाटा टेस्ट को चला जाएगा. You can write trend size also. Trend size 0.7 कर लो. This is equivalent to test size 0.3. दोनों सेट कर सकते हो, राइट? ये करने से ये तुम्हें बैकअप करके दे देगा ना. यू कैन चेक एज यूजुअल. नॉर्मली मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या डाटा कैसे दिखता है क्या नहीं. दिस इज जस्ट चेकिंग पॉइंट, सही आया या नहीं आया, राइट? देन दिस इज एज इट इज, यू फॉलो इट आउट बिकॉज़ दिस इज अ visualization mechanism. Data visualization is itself is a broad area. उसको मैं कभी और कवर करूंगा. How to visualize the data, ये बहुत जरूरी है, राइट? इसको देखने से आपको मालूम चलेगा डाटा कैसे स्कैटर्ड है, राइट? ये क्यों इतना मीन्स का एरर देगा, वहां से पता चलेगा. This is as it is, you are going to do it. If some specific query I can answer. Now this is important. This is the only cell where you get some important things. I'm instantiating the model by calling the constructor of linear regression class. ये लाइन कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता, कोई टीचर बोलता है. Nowhere you will find the object is instantiated. Nowhere you will find linear regression is a class, right? आप जावा का क्लास तो याद करो, जो जूनियर लोग तो याद नहीं कर पाएंगे, तुम लोग जावा को याद करो. अगर तुम यहाँ पर न्यू लिख के करते थे, न्यू क्लास नेम एज द पैरामीटर्स, यहाँ पर पाइथन में न्यू नहीं है, डायरेक्ट क्लास नेम लिखो. ये लिनियर रिग्रेशन पे पैरामीटर नहीं ले, अभी तो नहीं ले रहा, चेक करना, यू कैन चेक इट, चेकिंग पैरामीटर कैन से, अगर नहीं ले रहा है छोड़ दो, राइट? ये एक मॉडल क्रिएट हुआ मेरा.
नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, आपको दिया वेरिएबल नाम, you can write x y z also. Don't think you are doing ML, so I will write model. You write no model, no underscore model, no issue. Model is created, right? Once model create हो गया, I'm just printing it. There is no reason, कुछ जरूरत नहीं है. Fit is the method. Fit करने से ये x train y train को लेके मॉडल अंदर से खुद काम करके बीटा 0 से लेके बीटा 10 तक वैल्यू डिसाइड करता है. सर कैसे डिसाइड करेगा? ये डाटा को कैप्चर करने के लिए आई कैन हैव दिस लाइन, आई कैन पुट इट एनीवेयर. यस और नो? For different parameters, this angle of rotation can be anything. But at a particular point of time, we'll find the residual error is minimum. Are you getting my point? Suppose मैं ये लाइन को ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, पूरा कोई भी पॉइंट के थ्रू नहीं गया. Residual is very high, seriously high. तो वो लाइन मॉडल नहीं है. फिर थोड़ा टिल्ट किया, देखा कितना? फिर थोड़ा टिल्ट किया, देखा कितना? रेशिडुअल. तो उसको मालूम चला at this particular positions the residual is minimum. इसके पीछे एक लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स है, उसको मैं टच नहीं करूंगा unless until I find you have that guts to understand. थोड़ा अगर तुम अपना ये नहीं दिखाओ तो मैं नहीं जाऊंगा. नॉर्मल दिस इज bit difficult. Vector calculus है, metric calculus है, वो सब भी है. Club is for entertainment. You enjoy the session. Coding करो, बाहर जाओ. डिटेल थोड़ा चाहिए. Real ML, real model रन करना है. My chamber is the only place. Not even the classroom. मैं क्लासरूम में भी डिस्कस नहीं करता. अगर unless until it is there in the syllabus, and unless I find that this is to be discussed, नहीं करता मैं, अवॉइड करता हूँ. You can talk to seniors. They'll tell you. But real ML model lies in its mathematics only. Only. No ChatGPT, no Gemini, no GitHub can give you the safeguard. नहीं दे पाएगा. थोड़ा सा मेहनत, you will be top of the world. थोड़ा dilutions, you will be nowhere visible. Anyway, let's see. So ये फिट करने से इसके अंदर बहुत सारा कुछ होता है. Right now not time to discuss. फिट करने से उसका अंदर एक फॉरवर्ड मेथड है, वो फॉलो होगा. काफी सारा ऑटोमेटिक फॉलो होता है. So it does all the things that you would have learned mathematically. इतना लाइन काफी. ये सब वही चीज करता है जो मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है. जानना जरूरी है, लेकिन ये प्लस उसका सही प्लस नहीं है. Because मुझे तो पहले बताया गया था you don't teach anything in the class. I was told, I was instructed not to teach anything. I said, what the hell I will do then? Right. Anyway, this is जो मुझे बोला गया वो सही भी बोला गया. मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, क्योंकि यहाँ पर मैथ बैकग्राउंड का मिलना मुश्किल है. फैकल्टी लोग अवेलेबल है, तुम क्या अवेलेबल हो? फैकल्टीज आर नॉट अवेलेबल विथ मी. तुम्हारा कंडीशन तो उससे खराब है. Right? But at the other end, it is my responsibility to tell you the truth. अगर ये चकमक करके निकल गया, चलो एमएल में हो गया, कहीं ना कहीं पे जाओ कि 10-15 साल के बाद तुम बोलोगे मुझे साहब धोखा दिए थे. बोलोगे जेन्युइन है, बोलना भी चाहिए. तो मैं अदर साइड बोलता रहता हूँ हमेशा. इसके पीछे सीरियस बैकग्राउंड है, मैथ इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन थोड़ा चाहिए. मैट्रिक्स इन्वर्जन्स, देन ग्रेडियंट कैसे निकलता है, व्हाट इज ग्रेडियंट वेक्टर, व्हाट इज ए कॉल वेक्टर. सोचिए, वरना टॉस नहीं कर पाएंगे. जो चीज टॉस नहीं कर पाएंगे उसको टॉस करने में प्रॉब्लम है. बिकॉज तुम आज दिखाई दिए, कल दिखाई नहीं दोगे. बाप रे क्या होता है वहां पर गया, है ना. So don't do that, right? Now I got something. I have a predict method. I pass X test. I'll get predicted value of y. Usual meaning is that. Then I'm finding the mean square error. इसको मैं import कर चुका हूँ ऊपर. Simply y test, y fit.
there's R square score, R square टेस्ट एक होता है, वो भी एक अच्छा खासा मैथमेटिक्स है। और टाइमिंग रिमेंबर, वाई टेस्ट वाई पीरियड को पास कर दीजिए। चेकिंग द मॉडल एक्यूरेसी कितना जा रहा है, R square वैल्यू कितना है। Somebody will ask you, what is your R square value? रिग्रेशन कर रहे हो, what is your R square value? R square value अगर 1.0 हो गया सबसे बेस्ट है, बट 1.0 कभी नहीं होता, कभी नहीं जाएगा वो, राइट? मीन्स क्या, जितना कम होगा उतना अच्छा है, पर उतना कम नहीं जाएगा, वो लीनियर। और एक इंटरेस्टिंग थिंग याद रखो, मैं रेगुलेशन टेक्निक बताया था सीनियर लोगों को बोलना क्लास में, राइट? रेगुलराइजेशन टेक्निक, एवरी मॉडल इज ए रेगुलराइजर। ये मुझे जानकारी नहीं, मुझे बताया गया एवरी मॉडल रेगुलराइजर, बिकॉज यू आर पुटिंग ए रेस्ट्रिक्शन। रिजर्व लीनियर में जा रहा हूं, बोलो आउटपुट क्या होगा, ठीक है? एसवीएम कर लिया, नॉन लीनियर ले आया, I put another restriction, and every restriction is a regularizer. Yes or no? Every restriction on the model is a regularizer, right? So that's it. I think nothing more is there. I think job is done. This is the only line where model coefficient and just displaying model coefficient, model intercepts. That's it. Now your coding session starts. Always remember, you are not, अगर कोई दिमाग में घुसता है ऐसा ये सब मुझे याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। Do not look into that. ऐसा होगा तो कभी भी जिंदगी में कोडिंग नहीं कर पाओगे। You cannot do it. Research with browse, research with code, कुछ हेल्प टूल्स मिल जाएगा, डॉट लगाने के बाद कुछ मेथड्स आ जाएंगे, तो वहां पर सिलेक्ट करो कौन सा मेथड। हाँ, लेकिन बेसिक दिमाग में होना चाहिए। अगर तो मालूम नहीं है ये रिग्रेशन में क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है असल में, we are finding the coefficients. We are finding the coefficient so that the regression line जो draw होगा, it will be achieving minimum mean square error. That's it. ये जान के होना चाहिए। Rest, all the codes you can type it, browse it, bring it, check it, हो जाएगा। Is it okay, everybody? Now I believe you can start.